So, last year in 2021 we finished 10 years of Oasis Valleys, जो एक बहुत ही एक माइलस्टोन अचीवमेंट और बहुत ही हैप्पीनेस की बात है हमारी पूरी कोर कम्युनिटी के लिए. सो लेट्स बिगिन विथ कैचिंग अ ग्लिम्स कि हम जहाँ बैठे हैं उसका जन्म कैसे हुआ और वो कैसे बड़ा हुआ और 10 साल हमने कैसे यहाँ गुजारे हैं. वी विल टेक अ ग्लिम्स. It's a delight to be at Oasis. This feels like a ashram, but like a different ashram without a single guru. The plants and the wilderness itself is a beautiful teacher, and great to see that this is a hub of so many good things happening. So it feels really special to be at one of these special centers, which are like from where a lot of great things are coming out, are vibrating into the country. So really touched by the intent of the place, really touched by the beauty of the place. A place so remote will have so many great things happening. So that's left me really touched, really inspired, and it's a joy to be here. અને અહીંયા ઓએસિસમાં આવીને મેં જે પ્રકૃતિ જોઈ છે ને માણી છે એનાથી તો મને એકદમ આમ રાજીપો ખૂબ રાજીપો અનુભવાય છે. અહીંયાની પ્રકૃતિને જોઈને ખૂબ મજા આવે છે અને એ પ્રકૃતિની બાજુમાં એની સાથે એની માટે કામ કરતા કરતા એના રંગો જોઈને અમને પણ અમારા જીવનના રંગો એકદમ નજીકથી જાણે અનુભવવા લાગ્યા હોય ને એવું લાગે છે. The place is truly magical. The surroundings are so inspiring, and it kind of brings together a whole energy of the forest and the people that you are associated with here into creative thinking, into new thinking. And that's why I guess the Oasis movement has been spurred, and it has taken quantum leaps in helping to improve the lot of children pressurized through education. So I salute the movement. I think the film
the small glimpse of what we had was very little to share the beautiful journey. Not just the building, पर ये the process of making the building itself was so enriching, not just for the construction team, be it the architect team, be it the resorts team, be it everybody, and not only them, but the beneficiaries also who came through. इसलिए हमने 11 साल की जो यात्रा की है वो हम सब के लिए, आप सब के लिए एक इतनी सुंदर यात्रा बन पाई. उसके लिए मुझे लगा कि ये मीन वी आर वेरी, इट्स अ प्राउड मोमेंट टू शेयर डिकेड ऑफ दिस जर्नी at this beautiful sacred place. So what better way to celebrate it than to express our gratitude to this institution. हम सब के लिए ये जगह ने जो हमें दिया है, हमने इससे जो पाया है, हमने इसमें जो अनुभव किया है, हमने जो इसमें एहसास किया है, हमने पहली बार आके इसमें जो महसूस किया है, ये सब चीज़ों को अगर हम शेयर कर पाएँ तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू से थैंक यू टू द एंटायर जर्नी and also to the people who have been a part of making this place also so beautiful and meaningful. तो हमने सोचा एक छोटा सा सेशन करते हैं सबके साथ. आप सब आए हैं, जो कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग बार बार आए हैं, कुछ लोग पहले दिन से इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो आप सब हम सब थोड़ा वक्त अपने साथ एक आध मिनट लेकर कि आपको यहाँ पे इस जगह ओएसिस वैलीज़ से आपने ये जो भी पाया है या जो महसूस किया है, जो भी फीलिंग्स हैं आपकी, वो अगर हम शेयर कर पाएँ तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग दैट वी कैन सेलिब्रेट, बेस्ट वे टू सेलिब्रेट इट. सो लेट अस टेक 1 or 2 minutes. हम 1-2 मिनट लेते हैं शांति से अपने साथ बैठ के. ये 10 साल में जो भी आपने इसके बारे में जो आपने फील किया है उसके लिए थोड़ा सोच लेते हैं. एंड देन वी कैन ऑल हैव द शेयरिंग फ्रॉम एवरीबडी. ठीक है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि ओएसिस वैलीज़ है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई ईंट पत्थर की बनाई हुई सिर्फ कोई इमारत नहीं है. इट इज़ अ स्पेस, it is a vibe, it is an atmosphere, it is an environment, it is learning, it is a lot of things. It is not just a building. तो जब हम ओएसिस वैलीज़ बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे दिल में से कौन सी चीज़ निकालती है? what does this space mean to me? ये मेरे लिए जगह का मायना क्या है? वो अगर आप अपने शब्दों में जो आपका अनुभव रहा है वो अगर बयां कर पाए, so that is what we want. So okay, yes, yeah. मुझे लगता है बिगिनिंग से बिगिन करना चाहिए. अच्छा. इसलिए मैंने थोड़ा गुलजार सर को अटकाया. आई थिंक बिकॉज नए दोस्त हैं बहुत सारे. हाँ. हमारे युवा दोस्त हैं, तो इन सबको अभी जो एवी देखा हमने, तो आपने देखा कि वो कैसी बंजर ज़मीन थी. ठीक है. और जो अभी आज भी बाहर देखो तो वो वही वैसी है. तो आई थिंक द होल थिंग बिगेन विथ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. जब हमको इंस्टीट्यूट के लिए ज़मीन लेनी थी, हाँ. तो हमने कन्वीनियंट लैंड नहीं ढूंढी. आसान लैंड नहीं ढूंढी कि स्ट्रेट लैंड मिल जाए आराम से. हाँ. सब लोग जो भी हमारे दोस्त थे जो रियल एस्टेट के होते हैं, जिनको हम पूछते थे कि भाई ज़मीन हमको लेनी है, सलाह दो, क्योंकि कोई हमारा विषय नहीं था, हम बहुत यंग थे, कोई हमारा एक्सपीरियंस नहीं था. तो वो लोग तो बोलेंगे कि रोड टच लो. माने सब लोग आसान चीज़ ढूंढते हैं कि रोड टच हो, आने जाने में जितनी हो सके इतनी सिटी से नज़दीक हो, सिटी के अंदर हो, महंगी है इसलिए तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो कि सीधी सिटी से जितनी हो सके इतनी नज़दीक हो, लेकिन रोड टच हो, सीधी हो. तो इससे हमने सब कुछ उल्टा किया. सिटी से उतना दूर आना चाहिए कि सिटी की बू इधर ना आए, उसका पोल्यूशन इधर ना आए. ज़मीन सीधी बिल्कुल नहीं चाहिए, वो कंट्रोल लैंड ही चाहिए. और वो हमको रेडी लैंड नहीं चाहिए, हमको बंजर लैंड ही चाहिए. क्योंकि दूसरी ज़मीन मिलती थी ऐसी जहाँ पे कुछ ऑलरेडी अच्छी चीज़ बनी हुई हो. हाँ, उपजाऊ अनेक ऑलरेडी कोई डेवलप करेली हो, यू नो, देन यू कैन बाय द रेडीमेड लैंड ऑल्सो. बट वी वेंट एंड चोज द लैंड दैट वॉज एब्सोल्युटली बैरन लैंड. और
इसमें हम उस वक्त बहुत यंग थे, आज भी यंग ही है, तो हमारा स्पिरिट ये था कि हमको कुछ क्रिएट करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। तो क्रिएट तो आप जहाँ कुछ ना हो वहाँ से आप क्रिएट करके कहीं और ले जाते हो। और ऐसा हमको सिखाने वाले भी बहुत सारे इंस्पिरेशन वाले लोग थे। जैसे सेवा रूरल ट्रस्ट करके एक झगड़िया में भरूच के पास इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे एक ट्रस्ट चलता है जिसके जो ट्रस्टीज़ है वो हमारे पहले के जनरेशन के गांधी जी के फॉलोअर्स, सब डॉक्टर्स है, सर्जन है, ऐसे लोग हैं। अमेरिका जाके वो वापस आए, वो हमारे मेंटर्स थे। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि जब हम अमेरिका से वापस आए और जब हमको ट्रस्ट बना के हमको हमारे मदरलैंड के लिए कुछ करना था, मातृभूमि के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने तय किया कि क्या काम करें। दे वर हाईली एजुकेटेड, डॉक्टर सर्जन थे। आप सोचो कि कितने हाईली एजुकेटेड, अमेरिका जाके सक्सेसफुल थे, वापस आए कि नहीं हमको तो भारत की सेवा करनी है, अमेरिका नहीं जाना है। तो उन्होंने उस वक्त हमें बताया था कि हमने कैसे तय किया कि कहाँ काम करें। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी की एक फिलोसॉफी थी कि सबसे जो गुजराती में જેમને છેવાડેનો માણસ કહે છે, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लेकिन जो सबसे पिछड़ा, सबसे जो लास्ट पर्सन बोलते हाँ, हैं, सबसे गरीब, सबसे अंडर प्रिविलेज जो इंसान होता है उसके पास जब बेनिफिट पहुंचते हैं तभी वो राष्ट्र की उन्नति कहते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि हमने ऐसा तय किया कि गुजरात में काम करेंगे, लेकिन गुजरात में सबसे बिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे जो पीछे है उस बस्ती के लिए, उन लोगों के लिए, उस विस्तार के लिए हम काम करेंगे। और फिर उन्होंने ये झगड़िया सर्वे किया पूरे गुजरात में, और सबसे अंडर प्रिविलेज जो क्लास था, क्योंकि वो सोशल वर्क भी एक विजन से करने वाले लोग थे, तो उन्होंने तय किया कि सबसे पीछे का जो विस्तार है वहाँ से हम शुरू करेंगे। और वो लोग वहाँ गए जहाँ कोई नहीं था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और आज वो एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है सेवा रूरल ट्रस्ट, और बहुत काम किया। डॉक्टर्स से उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल बनाई, स्कूल्स बनाई, और बहुत सारी तरक्की हुई पूरे विस्तार की। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंस्पिरेशन थी कि एडवेंचर कैसा होना चाहिए। तो पहले वैल्यूज़ तय होती है कि हमको क्या चाहिए। तो उन्होंने वैल्यूज़ तय की भी सबसे पिछड़ा हुआ इंसान, तो हमने भी वैल्यूज़ तय की जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से थी कि हमको ऐसी ज़मीन चाहिए, उसको हम बदल के रखेंगे। लीस्ट जो अनप्रोडक्टिव बोलते हैं ना, वैसी जमीन यहाँ जहाँ पे पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है उगाना, ऐसा उस प्रकार की जमीन। यस। तो हमने, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप था और सब ने स्कूटर पे जाना शुरू किया, 50-100 किलोमीटर घूमते सब। और फिर सब तरह से हमको परवड़े भी ऐसा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो जो परवड़े ऐसी और जो हमारी जो वैल्यूज़ में आए वैसी ये ज़मीन हमको मिली। हमने वो ज़मीन ली और काम शुरू किया। तो बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग, आई थिंक वी हैव टू सैल्यूट, आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फर्स्ट टू मेहुल, देन टू अल्केश, एंड थर्ड इज पल्लवी। मेहुल भाई ने ये बंजर ज़मीन थी उसको ग्रीन किया, उस पे जो मकान बना उसका पूरा कोऑर्डिनेशन, आर्किटेक्ट तो सूरत में थे, कॉन्ट्रैक्टर कोई और थे, हमारा खुद का कोई इंसान होना चाहिए करने के लिए, तो वो पूरी जिम्मेदारी अल्केश भाई ने निभाई। और यहाँ इंस्टीट्यूट बनी, अब कोई MBA वाला तो कोई था नहीं, तो पल्लवी दीदी बैठ गई यहाँ, पल्लवी बहन बैठ गए इधर, और शी इज़ दी एंकर। आप स्टाफ देखो, स्टाफ का स्पिरिट देखो, सर्विस का ओरिएंटेशन देखो, प्योरिटी देखो, प्यार देखो, कुछ अलग था है, वो अलग चीज़ जो है वो पल्लवी का एक्सटेंशन है। सो आई थिंक वी शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू दिस। माने मैं कल किसी को क्या, मैं यूजुअली ऐसा हम कहते हैं कि जो आपको ग्रीन दिखता है ना वो सब मेहुल भाई का है, जो रेड दिखता है वो सब अल्केश भाई का है, बाकी जो प्यार दिखता है अंदर वो पल्लवी दीदी का जो दिखता नहीं है पर है, महसूस होता है, वो पल्लवी का है। सो दैट इज़ व्हाट, सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो गुलजार जी, हाँ आप शुरू करें। For me, and I think for you all, this place, this oasis is oasis of love। यानी जहाँ पर
प्यार स्प्रेड होता है, मतलब लव स्प्रेड्स एंड हेट वेनिशेस। जहाँ मैंने देखा कि जो भटके हैं वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको रास्ता मिलता है, और वो रास्ता क्या, सही रास्ता मिलता है, सच्चाई का रास्ता मिलता है, और उनमें इतनी हिम्मत और कोरेज उनको मिलती है जहाँ वो खुद को नहीं बदलने की शपथ लेते हैं, बल्कि देश और दुनिया को बदलने की शपथ लेते हैं। थैंक यू। This is my second visit to Oasis Valley. During my first visit, I found it a best ecosystem where a man grows into human. मैं समझता हूँ कि कश्मीर वैली के बाद ये चल रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई वादी मुझे नज़र आ रही है वो ओएसिस वैली है। मैं अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए थोड़ा सा सलाह देता हूँ गवर्नमेंट को, ख़ास तौर जो नई पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी जो है नहीं, उसमें जो चीज़ें हैं जो 75 साल में मिसिंग थे हमारे। एक बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें था जो संजीव भाई ने 30 साल पहले इंट्रोड्यूस किया है, वो जॉयफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। हमेशा आप संजीव भाई और शिबा जी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट सी आती है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अब ये अंडरस्टैंड किया, जैसे कि हाँ यूँ पता हुआ था कि हर घंटे के बाद एक सुसाइड होती है हमारी कंट्री में। बेसिकली जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, उसमें बहुत सारी नकाइस है। जो उसमें वो चीज़ें जो है संजीव भाई ने 30 साल पहले उसको अंडरस्टैंड किया था, जो 75 साल के बाद अब हमारे जो वहाँ पर लेखक है, जो थिंकर्स है, वो सुन रहे हैं आजकल कि ऐसा होना चाहिए कि अब जो नई पॉलिसी है वो सारा उसमें मुझे लगता है कि 50% ओएसिस है, क्योंकि जॉयफुल लर्निंग है उसमें। और बहुत बढ़िया चीज़ जो यहाँ से हमने सीखी, क्रिएटिविटी, यानी जैसे कि बच्चे को सोचने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को बोलने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे के पास कॉन्फिडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जो नई पॉलिसी है वो कहते हैं कि जो डिग्रियां ये तो मैटर करेगी नहीं, आने वाले वक्त में अगर कोई चीज़ मैटर करेगी वो बच्चे की सलाहियत क्या है, बच्चे की कितनी कॉन्फिडेंस अपनी बिल्ड की है, बच्चा किस अंदाज और किस ज़ोरदार अंदाज में बोलता है। और बड़ी अहम चीज़ जो है आजकल जो बच्चे, सब बच्चों हमें लोगों को सीखना है वो है राइटिंग स्किल्स। तो मुझे याद है कि बहुत ही दुख कल से में हुआ जब मानसी की बात यहाँ चली, तो मानसी भी ने कहा कि जब संजीव भाई ने मुझे काम सौंपा तो 3 दिन में परेशान थी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, छोड़ूं या दोबारा लूं। लेकिन 3 दिन के बाद मेरी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ी, मेरी इतनी मेंटल टफनेस बढ़ी कि 3 दिन के बाद अब मैं एक ऊंची मुकाम पे पहुंचूं। बदकिस्मती हुई वो क्या है तो वो क्या नहीं है, लेकिन जो मेंटल टफनेस का कॉन्सेप्ट है कि जैसे संजीव भाई सोच रहे हैं कि बच्चे को जब हम मेंटल टफनेस का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वही चीज़ मुझे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने जो शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया था, शाहीन वो यानी वो चट्टानों पे वो बसेरा करे, तो जाहिर सी बात है कि जो शाहीन है तो वही बच्चे को उड़ान लेता है। यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में तो नज़र आती है मंजिल उनको आसमानों में। तो जाहिर सी बात है हमें ज़मीन पर भी रहना है और ज़मीन पर रह के हमें आसमान तक भी जाना है। तो सारी चीज़ें जो है जो नई पॉलिसी में है, इन्हें क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, तो यूँ मैं कहूँ जो ख़ासतौर कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप लोग बड़े प्यार से फोकस करते हो कि मैंने बच्चों को यहाँ पर बोलते हुए देखा, तो ये सारी चीज़ें मुझे कहता है 60% जो नई पॉलिसी में जो आज है 75 ईयर्स के बाद, वो सारी चीज़ें
हमें ओएसिस वैली में नज़र आ रहे हैं। संजीव भाई के लिए बहुत बहुत मुबारकबादी की बात है, शिबा जी के लिए मुबारकबादी है कि आप लोगों ने कश्मीर वादी को ओएसिस वैली में बदल दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। अब कश्मीर से तो मैं ही बचाऊं, अब मैं भी अब बोल लूँ अब। तो मैं एक अपने लिखे हुए शेर से ओएसिस वैली के बारे में एक शेर यहाँ रखना चाहता हूँ। ओएसिस वैली बाग है इल्म का, ओएसिस वैली बाग है इल्म का, यहाँ का हर ज़रा ज़रा, सॉरी मैं भूल गया, अभी मैंने लिखा था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद सुनाता हूँ। तो यहाँ जो हर ज़रा ज़रा है इस वैली का, वो गवाह है कि यहाँ बच्चे जो हैं कितना कुछ सीख के जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ अगर कोई भी ज़रा है, वो यहाँ कुछ ना कुछ वो भी सीख रहा होगा। यहाँ पर लगभग तीसरा चौथा साल हमारा भी है यहाँ पर, तो हम खुद भी इतना कुछ सीख चुके यहाँ पर, और आगे भी हमारे में भी वो चाहत है कि हम आगे जो भी यहाँ से सीखा है हमने, वहाँ मतलब पूरे देश के बच्चों को हम यही चीज़ें सिखाएं जो यहाँ से हमने सीखी हैं। तो ये सिर्फ हम बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक इसके पीछे एक सोच है। सिर्फ बिल्डिंग जो होती है उससे सोच नहीं बदलती है, बल्कि जो बिल्डिंग है उसके पीछे जो सोच है, ये जो पूरी वैली है उसके पीछे जो सोच है, सोच यही है कि किस तरह से हम पूरी दुनिया को बदलें, उनके दिलों में घुस के, चाहे एजुकेशन से, चाहे जो भी हमारे पास सलाहियतें हैं, जो भी हमारे पास कोई भी टैलेंट है, हम अपने बच्चों में वो टैलेंट को उभारें। और जितना हम इस फील्ड में मेहनत करेंगे तो इतना ही हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा। मतलब समझ लीजिए हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हैं जो हमने मतलब कल बयान करनी है। तो हम और दुआ भी कर सकते हैं कि जो ओएसिस है ऐसे ही फूले फले और हम भी और काम करते रहें और पूरे देश की तरक्की हो। पूरे जो देश का ख्वाब है, जो हमारे जो भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, तो वो पूरा हो। और इसका सारा क्रेडिट जो है संजीव भाई जी को जाता है और शिबा बहन जी को जाता है। हम इनके लिए और बाकी जो भी इनकी साथ जो भी टीम है उनको जाता है, और हम उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उनको हमेशा सलामत रखे, ताकि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और हम जैसे लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हों, हम उनसे फ़ायदा उठाएं और आगे हम भी यही जो पैगाम यहाँ से शुरू हुआ है वो आगे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब मुझे शेर याद आएगा मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैं अभी लिखता हूँ क्योंकि मुझे अचानक ही भूल गया। हाँ, मैं अभी आपको हमारे पास एक्चुअली टाइम 5-7 मिनट ही है, तो हम सब कुछ रिक्वेस्ट करूँ कि जो ओएसिस वैलीज़ के साथ बहुत ब्रीफ में आप रिफ्लेक्शन अपने शेयर करिए। आगे से यंगस्टर्स भी यंग यूथ है जो लोग पहली बार आए थे, केरला से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, दूर दूर से तेलंगाना से आए हैं। प्लीज़ आई सपोज यस या आई कैन सी द फेस। या गो ahead. Good afternoon, ma'am. Yes. And everyone. So the best learning for me is that bold thinking on non-academics, ma'am. So wherever I go there, I'm still now in academics also. Till before I come here, I also believe only in academics. Also that after I come here, I also understand academics, that academics does not make me to stand alone or independent.
as this character building. Above this also, even if you one get PhD or post PhD also, they do not have any security for anything. So even for the next time's bread also, the post PhD or PhD also will not give. On the other hand, this valley, this place assures student that after 2 years you can stand on your own leg. So which is very great in every sense. So this is very really nice for me, and then truly I will also contribute to spread this one. This there are many opportunities are there. So not just in academics, also that everywhere also it is written that education means this book learning and bookish knowledge only. But here, apart from this, even library also that, so even the important books are there, but apart from bookish knowledge, here the focus is on there. Yes. This is very much highlight, and then I very much liked also, ma'am. Thank you. Thank you. बेसिकली मतलब मैंने लिखा नहीं था, वो मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि ताज़ा ही मुझे मेरे जहन में आया था. ओएसिस वैली एक बाग है इल्म का, इल्म की खुशबू से महके हर ज़रा ज़रा यहाँ का. ओएसिस वैली एक बाग है इल्म का, इल्म की खुशबू से महके हर ज़रा ज़रा यहाँ का. थैंक यू. Very good. Yes. Good evening, all. Okay. So I'm not sure, like, to express it formally, but to me, I came here with zero interest for the L3 camp. Like I usually don't like to stay away from home, from my mom, from football. I don't like to stay away. But after I came here, this is the most important and my favorite thing to come here. Like, I go to college, they say like Akash doesn't want to stay at college, he wants to go to Gujarat. They say, keep on telling that. Okay. I say it's not about Gujarat. There's some particular place in Gujarat. Okay. Best thing is like when I tell to my mom that you should like always have good character studies is nothing, but she always tells me like you have to score good marks. Especially Kerala, thinking is like you should get good marks. You have to look after your family. But I say like, what if I just simply get marks and like I become like that Badmash Londa? What will happen? So I try to make them understand, but I was not able to do that because I was like very I used to get very angry. There are a lot of things, but after here, like Amma used to ask me, like she used to ask me, what's happened to you? What's happened to me? Like, she's like very surprised. So this time actually I told her just 2 days before I came here. She told like, okay, oh yes, so go. Just go. Like, actually, this is my favorite place. Okay. Like, whenever like I get a bit of opportunity, I just want to jump here. Come, okay, that's enough. Beautiful. That's so sweet. Very sweet. So, good afternoon, everyone. ISS to me is all about the people. Yeah, for the police, the green, the building, whatever be, but the ISS, the kind of people and the comfort or the interaction we get is very different from the outside world. The smile is actually, I'm a person who used to ask, like Akhleshwara knows, how they can smile like this. Are they faking? Why are they smiling like this? No one can smile like morning to the night like this. But to be honest, I am the part of it and I know how that smile comes, because when we come across many life or when we are hosting the part, anchoring part, many frustrations, something will be in our mind, but we can't express. We are actually smiling because when they look at us that way only. So it and for me, I just want to add, before coming here, I actually thinking what I'm actually doing. I don't know, but each time, this is my 3rd time, each time coming here, it surprises me that life is actually very beautiful and very surprising and very exciting. Very good. And each time I come here, I actually want to share this. I want to see his face. I don't know why. Whatever time I comes here, I just want to see his face. And he was like,
This is the energy that I get. And it's very beautiful place. Amma always ask me why you're going there, because it's very hard. The food is not here, the phone is not here, the people is not there, the chilling is not there, nothing is. But still every time we want to come here because something is owning us here. We are so happy to be part of it. Beautiful. Thank you. So yes, couple of minutes and then we can conclude. Anything which is different? Yes. Yeah, somebody. Good evening. Myself, Bhaskar. We came from Hyderabad, Telangana. So this is my first visit to Valley, Oasis Valley. So last month, I think Mehul ji and Pallavi ji came to my organization. So we had a small orientation for our children. We run a camps for the child labor. So MVF works for the child labor education for the child labor. So in that relationship, so we visited here. We 4 of us from Telangana and 1 from Bihar. We are also working in Bihar. So myself and Rajendra Prasad, Nagmani and Larita. So after came here, we understand that so अपने अपने को देखने के लिए मौका मिल रहा है यहाँ पे. Very good. You know, so this kind of situation बाहर तो नहीं है ऐसा. हम तो शिक्षा के माध्यम से लेके हर स्कूलों में हर बच्चों के साथ काम कर रहे, मगर हम बहुत सारे देखता हूँ, मगर ये ऐसा मौका क्यों नहीं मिल रहा बच्चों के लिए, क्योंकि एजुकेशन में अगर ऐसा बच्चे पैदा होने से दुनिया जरूर बदलता है. Very right. मगर ये पूरा बच्चों के मिलने के लिए क्या तरीका है वो भी ढूंढना जरूरी है. सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओएसिस को, ये कैसे हम पूरे स्टाफ दे पूरे बच्चों के हर बच्चों की कैसे मिलेंगे शिक्षा. Absolutely. Thank you very much. Madhvi was to say? Yes, Madhvi. अच्छा, okay. Somebody. ऑन करिए. मैं सेल्फ राजेंद्र प्रसाद. मैं कल से यहाँ हूँ, यहाँ पे सुन रहा हूँ बहुत लोगों से और कुछ लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ. इट्स ए वाइब्रेटिंग प्लेस एक्चुअली. lot of change I could see, while hearing all of you. I think it's एक चिराग यहाँ से अभी पूरा देश पर फैलना चाहिए, ऐसा लग रहा है. क्या? Thank you. गुड इवनिंग साथियों, मैं अमरनाथ चौधरी फ्रॉम बिहार से. कल से मैं भी यहाँ प्रेजेंट हूँ और मैं ये हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ओएसिस को, जो यहाँ तक हम लोग को बुलाने का काम किए. और इस तरह का कार्यक्रम जो देखने के बाद हमें अंदर से यह खुशी हो रही है कि इससे पूर्व में मैंने यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम हमने देखा नहीं अभी तक. और हम लोग पूर्व से ही लगभग 2010 से बच्चों के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, मगर वैसे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं या ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन बच्चों के लिए. मगर आप लोग यहाँ जो बच्चे का सेल्फ जीने का तरीका किस प्रकार से हमको जीना है, आगे देश के लिए हमको किस प्रकार से रणनीति तैयार करना है, हमारे देश को बदलना है, वो सिखलाने का काम कर रहे हैं. वो मुझे अंदर से बहुत सा खुशी महसूस हो रहा है. थैंक यू. बस माधवी टू कंक्लूड. मैं 4 साल 2018 में पहली बार यहाँ आई थी एंड आई वाज अटैच्ड टू सम रिलीजियस इंस्टीट्यूट. और मुझे पुराने मंदिरों में वगैरह जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ बहुत शांति मिलती है, एक सुकून वाले वाइब्रेशंस आते हैं.
और यहाँ क्या है मुझे कुछ पता नहीं था, पहली बार आ रही थी, मुझे आना भी नहीं था। और जैसे ही मैंने पार्किंग से नीचे आना शुरू किया था, मैं अभी भी वो एहसास नहीं भूली हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था किसी बहुत बड़े मंदिर में जो पुराना होता है वहाँ जैसी एक अनुभूति आती है ना, एहसास, वाइब्रेशंस फील होते हैं, वैसा कुछ है अंदर। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ क्यों। अभी ये जो सब सेशन हुआ ना, तो मुझे ओएसिस वैली का वो मर्म मिला उसमें कि बड़े बड़े आश्रमों में या गुरुकुलों में या अपने जो कोई भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं रिलीजियस में, वहाँ जो तप करवाते हैं या साधना करवाते हैं, उससे कई गुना, लाखों गुना बड़ी साधना यहाँ खरे सीधे मायने में रियल मैटर्स यहाँ होती है। तो छोटे छोटे बच्चों से भी होती है, बड़ों से भी होती है। और उसमें सबसे बड़ा है कि जो संजीव भाई ने कहा था कि तप होता है, तो वो तप खुद को तपाता है, खुद को तपाना और खुद को तपाने का आनंद लेना और खुद से प्यार करना, ये पूरा जो सिखाने वाली ये इंस्टीट्यूट है। तो इट्स एक घोंसला भी है जहाँ उड़ना सिखाया जाता है, और ये एक बेस कैंप भी है जहाँ जो उड़ के बाहर जाते हैं उनको थोड़ी बहुत ज़रूर होती है कि वापस आ जाए, तो वो बेस कैंप भी है और एक घर भी है। और घर से उड़ान देने वाला वो जो पूरी रॉकेट का इंजन लॉन्च होता है ना, वो ताकत, वो अग्नि भी यहाँ है। एब्सोल्युटली। स्टार्टिंग के डेज का किसी ने नहीं बोला, लेकिन हम बहुत छोटे थे तब से। हम ड्रीम इंडिया कैंप में 2012 में आए थे, और तब जो किचन एरिया था वो पूरा ओपन टेरेस जैसा था, जहाँ पे हमारी फर्स्ट घोस्ट ट्रैकिंग की। तो तुम्हारा डिकेडल सेलिब्रेशन हो रहा है 2012 में, 22 चल रहा है। सो आई रिमेंबर कि वो एरिया पूरा खाली था, जो किचन वाला था पूरा ओपन था, और वहाँ पे हम सब लाइन में खड़े होके पहली बार घोस्ट ट्रैकिंग के लिए गए थे DIC में। फिर एस्पायर हॉल था, वो गर्ल्स डॉम जैसा था, तो हम सब गद्दे लाके बिछा के वहाँ पे सोते थे। सब पाताल डॉम्स से नहीं थे, आगे वाले ये डॉम्स नहीं थे, ये कुछ भी नहीं था। तो हम सब पाताल में खाना खाते थे, वो हमारा पूरा किचन एरिया था। सो वहाँ से लेके अब तक की बहुत, अब ऐसा इन हाइंडसाइट देखते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ बदल गया। लेकिन वो जो फ्रीडम वाली फीलिंग है, वो जो आई कैन बी माई सेल्फ अंदर आते हैं, तो वो फील होता है आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी माई बेस्ट सेल्फ। ये जो फीलिंग यहाँ पे आती है वो चेंज नहीं हुई। तो हर रूम हमारा कमरा बन चुका है, बट वो एक्सपीरियंस इज आई थिंक अनफॉरगेटेबल। Thank you so much. So I suppose lot of things to be shared, but we are also running out of time today. And in the way आपने जैसे अलकेश, मेहुल और पल्लवी ने जिस तरह इस बिल्डिंग के अंदर जो आप महसूस करते हैं उसको बनाया, वैसे दो दोस्त और को भी मैं कहने की ज़रूरत नहीं, बट आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज, जो ये सपना साकार हो, रियलाइज़ हो, ये बन पाए, वो आसान बात नहीं थी। ओएसिस में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। वो ज़मीन ढूंढने से ले लो या ये बिल्डिंग बनाने की प्रोसेस में ले लो। तो आर्किटेक्ट टीम तो है ही, वो भी यहाँ पे है नहीं प्रेजेंट, तो हमारी इन एब्सेंस वो जो हमारे 5 दोस्त हैं, स्पेशली स्नेहल भाई, सलोनी बहन और पराग भाई जो सूरत के हैं दोस्त, उनको इन एब्सेंस बहुत दिली ग्रैटिट्यूड हम सब की तरफ से, जो आपने कहा है वो उनकी तरफ से मैं उनको पहुंचाना चाहूँगी। और थैंक यू। और उसके साथ में है सिद्धार्थ जी और योगेश भाई। सो ये दोनों दोस्त ने इस मुश्किल को जो आसान बनाया, मुश्किल जो भी थी उसमें जिन्होंने आसान उसको बनाया, वो थे तब ये हो सका। तो नॉट थैंक यू बट आई थिंक लेट अस आल्सो एक्नॉलेज, नहीं तो डांट पड़ेगी सिद्धार्थ की। सो आई थिंक दैट वाज ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने मिलके बनाया है यहाँ पे नहीं है, पर कोई भी चीज़ जो भी हमें ये एहसास देती है, जो भी हम कह रहे हैं, वो बहुत सारे दोस्तों की, फॉर दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे वर ऑल फैमिली, उन सब का ब्लड स्वेट एंड टीयर्स बोल सकते हैं लिटरली इन दैट सेंस। बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ डाली है, फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन पीपल टू एवरीवेयर, बिकॉज दिस वॉज नॉट एन ईजी टास्क। सो टू ऑल ऑफ देम,
ऑन बिहाफ ऑफ द पास्ट 10 years जितने लोगों ने, हम लोग सब ने इसका बेनिफिट लिया है, जो आज ले रहे हैं और जो भविष्य में जितने भी लोग लेते आएंगे, उन सब की तरफ से ये टू ऑल द क्रिएटर्स a humble bow and a genuine thank you. So let us clap for all of them.